शेक्सपियर से ये ताल्लुक किस तरह से बढ़ता चला गया? मतलब 400 साल पुराना, अब तो मेरा भी ताल्लुक़ हो गया उनके साथ। एक्चुअली शेक्सपियर से मैं बहुत लेट, मेरा जो तारुफ हुआ वो बहुत लेट हुआ, क्योंकि स्कूल में जब शेक्सपियर पढ़ाया जाता है तो वो शेक्सपियर बहुत डरावने लगते हैं उसमें स्कूल में, जब सवालों के जवाब में याद करने पड़ते हैं। मगर जब मैं आई थिंक आई मेड फ्रेंड्स विद हिम इन द राइट एज, because at that time I was looking for a story for my underworld genre, and actually it was not Shakespeare, it was my genre which attracted me towards Shakespeare, because I was looking for a story which can provide me that backdrop and yet allows me to have some depth and deep characters. So that's how I met Shakespeare, and then I would also like to apply for the film. Hi, this question is for all three of you. With Shakespeare, the material that you have to convert any of his plays or his sonnets into film, there's a treasure trove of material. But yet we've not found him to be very popular in mainstream Hindi cinema until recently, of course, when Vishalji made 3 films based on his plays. And then, of course, we have films like Angur, which came out many years back. So why do you think that it's not become a very popular source material for Indian filmmakers in Bollywood? And how do you intend to make this program, like sort of the film that comes out of this program, reach the masses? Because you had to convert your films into very rooted in their Indianness. So if you could answer that question, why it's not that popular yet? I think this is the sign that Cinestan and Film London is coming together to create 5 or 10 scripts out of on Shakespeare. I think this is a sign that the problem with all of us has been so far, and which will remain, that we think that something which is of a high value literature is supposed to be boring. Unless it's boring, it can't be literature. So that has been the problem, and I, including me, even I never thought that Shakespeare is so entertaining till I actually went into the depth and discovered that क्या ड्रामा उनका हुआ करता था और क्या कैरेक्टराइजेशन एंड क्या प्लॉटिंग हुआ करती थी, जो कि अनमैचेबल है, मुझसे तो कभी नहीं हो सकता था वो, अगर मुझे वो मटेरियल नहीं मिलता बना हुआ. So I think it's a great sign that my films have done well. I am here because of those films. I am known because of those films. So and that's why I am sitting here. So it's a great sign. Will this be another Shakespearean adaptation? Because we'd be hearing rumors that it's apparently based on King Lear. So could you divulge something? No, it's not on King Lear. So could you tell us something more about the film? No, I think we are here for Shakespeare. We should talk about Shakespeare. विशाल, जैसा कि आपने 3 फिल्में बनाई शेक्सपियर की रचनाओं पे, सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा टास्क रहा? मकबूल या फिर हैदर या फिर ओमकारा? क्योंकि देसी अडॉप्टेशन या यहाँ के मिजाज में उसको ढालना, शेक्सपियर वैसे ही पेचीदा हो जाते हैं. एक्चुअली तीनों में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी. पहले में बजट रेस करना बड़ा मुश्किल था, दूसरे में बजट कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था, और तीसरे में रिकवरी वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल. एंड रितेश इज हियर. Ritesh, congratulations on your BAFTA nomination for Lunchbox. We're here to learn about how you make it globally so big with first debut. I don't know. I don't know how to answer that question. Sorry. It just kind of happened, everything. So. Yeah, I think I should make another first film. I think I should change my name, get a plastic surgery, and do this again. But I'm happy to be here. And sorry, thanks for waiting for me. I was stuck in the passport office. I should have got an agent. Everyone told me get an agent, get an agent. I did not listen. I went and did it myself, and I spent 2 days doing it. So I think I deserve an award for that more than for the film. Well, we're very happy to have you as one of the mentors with us in London for this very unique opportunity that we're giving to emerging talent,
both here in the UK and in India. And one of the things that we're very proud of is that, you know, you, Vikash, Vishalji, etc., have been champions of emerging talent in India for a very long time. And I think I can safely say for a lot of talent that's already here and people who've already applied, that you're providing that inspiration for us to genuinely make a very good attempt at proving this program successful. So thank you. Thank you. Did my mother send you? My mother always sends people to things and makes them say good things about me. So just check. I'm happy to go meet your mother. Hi, I'm Madhu from the Bus Diary. My question is to Vikas. Which is your favorite Shakespearean character? On whom you would like to have a story on, or you have some idea? Heather? Some character which is your favorite. You know, actually, I am, for me, it's a learning session, this whole journey. I'm one of those people who thinks Shakespeare is high-level literature and it cannot be made into movies that make money or do well at the box office. So I think for me, it's going to be a journey to learn Shakespeare, understand, and hopefully come back and say, yes, I think it's high drama and it can do really well. So maybe when I come back, I'll answer that question. Yeah, sure. Thank you. विशाल जी, आपके अलावा भी कई लोगों ने शेक्सपियर को ट्राई किया, जैसे संजय लीला भंसाली जी ने Sanjay not here. Yeah, Sanjay should have been here. No, he We made. should've. Yeah. Yeah. तो आपको जिन फिल्मकारों ने, गुलजार जी ने भी किया अंगूर, तो आपको आपके कौन फेवरेट हैं जो जिन्होंने शेक्सपियर के अंगूर मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म है, और अंगूर की वजह से ही कहीं मेरे सबकॉन्शियस में, क्योंकि उसमें लास्ट शॉट में शेक्सपियर विंक करते हैं, आंख मारते हैं, तो मुझे तब पता चला कि ये शेक्सपियर के प्ले पे बेस्ड है, नहीं तो मुझे पता नहीं था, और वो कहीं मेरे सबकॉन्शियस में था। और उसके बाद मैंने कहीं जब मैं मकड़ी बना रहा था तो विचेस के रेफरेंस के लिए मैंने थ्रोन ऑफ ब्लड देखी, वहाँ से दोबारा मेरा ट्रिगर हुआ कि यू नो शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए, तो मैंने मैकबेथ पढ़ा। तो अंगूर एक्चुअली वाज माय ट्रिगर पॉइंट। आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि शेक्सपियर को इंडिया में इतनी पॉपुलैरिटी मिलना और शेक्सपियर और फिल्म लंदन के साथ में आना, इट्स अ वेरी बिग साइन दैट ब्रिटेन और इंडिया मिलके शेक्सपियर के 400 ईयर्स साथ में सेलिब्रेट करने वाले हैं। नए लोगों की स्क्रिप्ट्स आएंगी, नए लोग लिटरेचर की तरफ आएंगे, शेक्सपियर को पढ़ेंगे, बिकॉज शेक्सपियर समंदर की तरह है, उनको जितना भी पढ़ा जाए उतना कम है। आई थिंक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, बिकॉज उनके इट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइडियाज़, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ को फाइनेंस मिलना मुश्किल होता है, लिटरेरी आइडियाज़ को फाइनेंस मिलना मुश्किल होता है, स्पेशली नए लोगों के लिए। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म में बनाया प्लेटफॉर्म, पैसे मिल रहे हैं फिल्म बनाने के लिए। विशाल जी, हम यहाँ पे इंटरनेशनल सिनेमा की बात कर रहे हैं, शेक्सपियर की बात कर रहे हैं। आपकी जो कंटेम्प्रेरी है अनुराग कश्यप, उनकी फिल्म जो इंटरनेशनल फिल्म है उसमें एक वीडियो लीक हुआ है, तो व्हाट इज़ योर रिएक्शन? लाइक राधिका आप्टे का जो वीडियो लीक हुआ है उस पर आपका क्या रिएक्शन? इंटरनेशनल फिल्म मैंने सुना उसके बारे में, तो मुझे बहुत दुख है उसके लिए कि इस तरह की हरकत होना, उसका लीक होना, इट्स अ वेरी सैड थिंग, स्पेशली फॉर राधिका, बिकॉज शी इज़ एन आर्टिस्ट एंड शी इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। और एक्टर जब एक किरदार प्ले करता है तो वो उस किरदार में होता है, तो उसको इस तरीके से हमारी सोसाइटी थोड़ा, आई थिंक वी आर रिप्रेस सेक्सुअली, तो दैट्स व्हाई वी रिएक्ट। विशाल जी, आपको लगता है मुंबई में रेस्टोरेंट्स और पब्स डे एंड नाइट ऑन होने चाहिए, नाइट लाइफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और बड़ा मज़ा आएगा ऐसा हो जाए तो, क्योंकि सोसाइटी में इतनी डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ की मनाही नहीं होनी चाहिए। अभी तो मुझे पता भी नहीं है ठीक से कि उसमें शाहिद और सैफ हैं या नहीं है, अभी हमारी कास्टिंग लेवल पे हम लोग हैं, तो आई थिंक सून विद इन अ मंथ आई शुड बी एबल टू फाइनलाइज। So, any plans to attend Shahid's wedding in December? जी, Shahid's wedding in December. नहीं, मैंने भी सुना है, मुझे शायद बुलाएगा ज़रूर, आई एम होपफुल, तो मुझे पता चलेगा। विशाल जी, क्या एक्ट्रेसेस को अपना करियर जो है सेकंड टाइम लॉन्च करना चाहिए, सेकंड इनिंग्स बॉलीवुड में? इनको किया एक्ट्रेसेस को क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए।
सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम बिल्कुल करना चाहिए। कई एक्ट्रेसेस विशाल जी हमने देखा है कि फेल हो जाता है जब रीलॉन्च होता है कई साल बाद, जैसे विद्या बालन हो गए, माधुरी के कई एक्ट्रेस हैं, प्रीति जिंटा हो जैसे। आई थिंक मुझे पता नहीं आप जो नाम ले रहे हैं वो फ्लॉप हुए हैं या नहीं, बट कोई अगर फेल हो तो अपने फेलियर से सीख के दोबारा आगे करना चाहिए। उसमें तो फेलियर से सीखते हैं। डायरेक्टर चेयर से तो बहुत कुछ निकलता है, संगीत की जानिब से भी विशाल से उम्मीदें रहती हैं, तो इस लिहाज से कुछ करने की सोच रहे हैं? मैं कर रहा हूँ अभी अजय देवगन की जो फिल्म है दृश्यम, मैं उसका म्यूज़िक कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। निशिकांत कामत उसके डायरेक्टर हैं, बहुत ही ज़हीन डायरेक्टर हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है उस फिल्म के गाने करने में। गुलजार साहब के साथ जुगलबंदी हमेशा नजर आती है, फिल्मों से अलग कुछ प्लानिंग? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये फिल्म ही था उसमें। विशाल जी आजकल ज़माने में फिट रहना बहुत ज़रूरी है, कभी हेल्थ की बात है तो आप कुछ हेल्थ के लिए बने कुछ टिप्स दे या कुछ? नहीं, मैं तो अभी भी टेनिस खेलने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आई वांट टू रन बिकॉज आई हैव माय टेनिस गेम। आप कैसे फिट लगते हैं? मैं टेनिस खेलता हूँ एकदम रिलीजियसली। थैंक यू।